So now finally, when the GIPMAT updates and notifications are completely out, so I'm Jammu's IPM admission policy is out, I'm Bodhgaya's IPM admission policy is out. You need to know what is GIPMAT completely. So we are bringing this in front of you all क्योंकि हमने bits and pieces में information आपको जरूर provide करी है, but पूरी तरीके से GIPMAT समझना है तो this video is exactly made for that particular purpose. So what exactly is GIPMAT? What is going to be the exam pattern and syllabus of this particular examination? What is going to be the exam date, eligibility criteria, are you eligible or not? Total seat intake, what's going to be the total seat intake via this particular examination? IIM Jammu's eligibility criteria is going to be different than the overall eligibility criteria of GIPMAT. Then IIM Jammu's selection criteria is different. IIM Bodhgaya's eligibility criteria and the tiebreaker rule as well as the selection criteria of IIM Bodhgaya, we're going to discuss each and everything. थोड़ा सा बड़ा वीडियो होने वाला है बट हर चीज समझाएगा. जिपमेट के बारे में सब कुछ जानना है तो स्टिक टिल द एंड. सब्सक्राइब सुपरग्रेड यूट्यूब चैनल अगर अब तक नहीं किया क्योंकि इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलने वाले. चलो लेट्स मूव अहेड और जल्दी जल्दी एक चीज समझते हैं. सबसे पहले जिपमेट है क्या? जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. वही एजेंसी जो इंडिया में बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, चाहे वो सीयूईटी हो या जेई हो, एवरीथिंग. इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट. मतलब आपको 4 चॉइसेस मिलती हैं हर क्वेश्चन के बाद. इट्स अ सिंगल एग्जाम जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं आईपीएम प्रोग्राम्स ऑफ आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया. 2 आईएम साथ में कंडक्ट करवा रहे हैं वाया एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ठीक है. अब आईएम जम्मू और आईएम बोधगया दोनों आपको पर्टिकुलर आईएम्स मिल जाएंगे जिपमेट एग्जाम लिखने के बाद. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स. This is going to be the exam pattern. When we say quantitative aptitude, it's the mathematics till standard 10th. Then 33 questions will be asked. Every question is having +4 marks, and incorrect question is having -1 negative marking over there. Then second section is data interpretation and logical reasoning. Same 33 questions. Total marks 132 +4 -1 for incorrect question. अगर incorrect mark कर रहे हो तो. Verbal ability and reading comprehension 34 questions पूछे जाते हैं +4 -1 and 136 marks का ये total section होता है. There is no sectional timing over here. Overall timing है इस particular examination की 2 hours 30 minutes and there are no sectional cutoffs as well. ठीक है, ये clarity. Now let's move ahead and discuss something important. जिपमेट का syllabus भी देख लेते हैं. Quantitative aptitude में questions till 10th mathematics are asked. Understanding and application of various concepts up to क्लास 10th जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो. बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ कोर्स बहुत टफ होने वाली है. सेक्शन बी डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ इंटरप्रेट द गिवन सेट डेटा सेट. तो बेसिकली यहाँ पर कुछ आपको डेटा दिया जाएगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. लॉजिकल रीजनिंग में कुछ पजल्स पूछे जाएंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इंटेलेक्ट को चेक करें और उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको एक सही गेस करना है वहां पर. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रिहेंशन में क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कुछ आरसी पैसेजेस रहेंगे रीडिंग कंप्रिहेंशन वाले पार्ट में. और वर्बल एबिलिटी में आपकी कैबलरी, ग्रामर, बाकी और भी चीजें चेक की जा सकती है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. This is the exam date this particular year is going to be 26th of April 2025. This exam would be conducted for 2.5 hours from 3 to 5:30 p.m. Usually it was conducted, last year it was conducted in the month of June. This year it's being preponed from last year and it's being conducted before IPMAT Indore and IPMAT Rohtak, जिसके थ्रू भी आप different IIMs के थ्रू में एडमिशन ले सकते हो. You can register the exam on the NTA's website. JIPMET NTA कर 2025 सर्च करोगे गूगल में मिल जाएगा. लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 11th of March 2025 और वो भी 11:50 PM रात को. तो उससे पहले पहले आपको रजिस्टर करना, नहीं तो आप ये मौका हाथ से गवा दोगे. ठीक है. इसके ऊपर डिटेल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है चैनल पे, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो. नाउ लेट्स लुक इनटू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो स्टूडेंट्स शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th और HSC एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द स्ट्रीम्स, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो. तो इन द ईयर 2023 में पास किया और 24 में, या फिर आप अपियर कर रहे हो 2025 में. अगर 22 में पास किया तो आप जिपमेट एग्जाम में अपियर नहीं कर सकते. The candidate must have passed class 10th examination the year not before 2021. 2021 के पहले आपने 10th नहीं पास की होनी चाहिए. The IIMs, IIM Bodhgaya and Jammu may have different eligibility requirements also. तो जिपमेट के साथ साथ अगर उन पर्टिकुलर IIMs में एडमिशन लेनी तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना होगा, दोनों की अगर दोनों में जाना चाहते हो, या किसी एक की अगर एक में जाना चाहते हो तो. ठीक है ना.
The percentage of marks obtained by candidate in 10th and 12th standard would be calculated based on board's regulation. ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी बोर्ड का रेगुलेशन होगा उसकी बेसिस पे ही परसेंटेज निकालनी पड़ेगी. If there is no such regulation regarding aggregate marks from the concerned board, then the aggregate marks of all the subjects appear in the grade sheet should be considered. तो अगर कोई रेगुलेशन नहीं है तो जितने सब्जेक्ट्स है उनका एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स देता है, आपको निकालना होगा. ठीक है, चलो अब आई एम जम्मू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं. तो बिल्कुल सेम जिपमेट जैसी ही है कहीं ना कहीं, बट बोध गया की काफी हद तक अलग हो जाती है. कैंडिडेट शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 23, 24 अपीयरिंग 25, बिल्कुल जिपमेट वाला चीज. द कैंडिडेट मस्ट हैव पास स्टैंडर्ड 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द ईयर 2021 और लेटर. मतलब सिंपल सी बात, वही वाली बात जो जिपमेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको दिखाता. लेकिन एक चीज इन्होंने एडिशनल डाल दी, वो ये कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स लेके आने चाहिए इन स्टैंडर्ड 10th एचएससी एंड स्टैंडर्ड 12th. 60% मिनिमम मार्क्स. अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो, या एनसीओबीसी कैटेगरी के हो तो. अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो तो, देखिए रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए 10th में भी 12th में भी. नाउ applicants were pursuing 12th this particular year किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड से, चाहे वो इंटरनेशनल बोर्ड हो या आईजीसीएसई हो या फिर सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड, वो भी इस पर्टिकुलर ईयर अपना एग्जाम लिख सकते हैं. फिर आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगी. बेस्ड ऑन प्रोविजनल एडमिशन आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने ही चाहिए, फिर आपको एडमिशन बाद में मिलेगी अगर एडमिशन मिल जाती है तो. ठीक है, नाउ कैटेगरी वाइज एक सेक्शनल कट ऑफ परसेंटाइल, तो एक प्री सेक्शनल कट ऑफ परसेंटाइल हर कैटेगरी की आई एम जम्मू ने पहले ही दी हुई है. ये काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो हर सेक्शन में अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 50 परसेंटाइल्स के ऊपर मार्क्स आने चाहिए. जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर किए आधे उनके फर्स्ट 50 परसेंटाइल को ही सिर्फ कॉल आएगा. ईडब्ल्यूएस में 35 35 35, एनसीओबीस में 35 35 35, एससी में 30 30 30, एसटी में 25 25 25, पीडब्ल्यूडी में 25 25 25. इतने परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को ही कॉल आएगा. दैट इज सेक्शनल कट ऑफ, एग्जैक्टली सेक्शनल प्री सेक्शनल कट ऑफ. सेक्शनल कट ऑफ से कहने से अच्छा है प्री सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि इवेल्युएशन के टाइम पे, फाइनल इवेल्युएशन के टाइम पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं देता आई एम जम्मू. वो आपको एक ओवरऑल जिपमेट का स्कोर आपका कट ऑफ के फॉर्मेट में देगा, लेकिन क्वालिफाइंग कट ऑफ ऑलरेडी दे रहा है आई एम जम्मू. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑल्सो. द परसेंटाइल ऑब्टेन्ड इन जिपमेट 2025 विल बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट. एक परसेंटाइल जितनी आई उसके ऊपर से मेरिट लिस्ट बनेगी. द कैंडिडेट्स हु स्कोर मोर देन or equal to category wise sectional cutoff percentile as mentioned above will be eligible for the merit list. जो मैंने आपको क्लियर बात पहले बता दी है ना. Now 2/3 of the total seats are gender neutral in nature. मतलब 92 seats, क्योंकि 140 seats है आई एम जम्मू में, तो 92 seats are gender neutral over here. In fact I think 94 होती है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना. ठीक है, now if the pool of gender neutral seats contain an optimal quantity of girls versus reservation categories, 94 है, yes. The remaining 1/3 of the total seats, 46, will be filled in gender neutral manner only. ठीक है, तो general neutral manner में भरी जाएंगी बाकी की 46 सीट्स. अगर यू नो पहले की 94 सीट्स में गर्ल ऑलरेडी आ जा रही है, तो अगर नहीं आ रही हैं तो वहां पर क्या आपको supernumerary girl seats, otherwise the remaining 1/3 of seats will be allocated as combination of supernumerary girl seats and gender neutral seats as applicable. तो फिर उधर वहां पर कोटा लगेगा और उसके बेसिस पर, उस कोटे के बेसिस पर गर्ल स्टूडेंट्स को भी प्रेफरेंस दी जाएगी जेंडर डाइवर्सिटी के कोटे में. ठीक, यहां तक समझ में आ गई. चलो अब बात करते हैं आईपीएम आई एम बोध गया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर. सो 12th यहाँ पे भी आपको पास करना है, किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस और इक्विवेलेंट स्ट्रीम से. अब यहाँ पर भी आपको जनरल कैटेगरी को 60% और मोर लेके आने हैं. एससीएसटी पीडब्ल्यूडी, देखो यहाँ पर ट्रांसजेंडर कैटेगरी और ऐड हो गई, 55% और मोर लेके आने. कैंडिडेट्स और अपियरिंग 2025 आर ऑल्सो एलिजिबल. प्रोविजनल एडमिशन उनको भी मिल जाएगी अगर वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाद में लेके आते हैं और अपना सर्टिफिकेट देते हैं 60% मार्क्स का. ठीक है, नाउ मस्ट हैव पास स्टैंडर्ड 10th आल्सो विद 60% इन जनरल कैटेगरी, और जितनी रिजर्व कैटेगरी उसमें 55% और मोर मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है. द क्लास 10th पासिंग ईयर शुड नॉट बी बिफोर 2022, ये क्लियर दे रहा है. और एक सबसे बड़ी बात जो कि आई एम बोध गया लगा रहा है वो ये है, देखो ये चीज कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी. Candidates appearing 2025 or who completed class 12th in 2024 are eligible. मतलब जैसे आई एम जम्मू में 2023 में भी आपका अगर 12th कंप्लीट हुआ है तो आप एलिजिबल हो, बट बोध गया में आप नहीं हो.
बोध गया में 2024 या 25 में अगर आप 12th कर रहे हो तो ही आप एलिजिबल हो। ये बड़ा डिस्टिंक्शन है एम बोध गया और एम जम्मू में। वो 2 साल का ड्रॉपर अलाउ करता है, ये 2 साल का ड्रॉपर अलाउ नहीं करता है एम बोध गया। नाउ ये मैंने बात ऑलरेडी कर ली, प्रोविजनल एडमिशन की भी बात हो गई। नेशनैलिटी क्राइटेरिया, इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल। इनफैक्ट बाहर के OCI PIO कैंडिडेट्स आल्सो रजिस्टर्ड बिफोर 4th March 2021 आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है जम्मू और बोध गया वो डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरिट लिस्ट की क्राइटेरिया जिपमेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसे वहां पे बन रही थी। ठीक है, अब जैसे वहां पर पूरा एक टेबल मैंने दिखाया आपको, मिनिमम परसेंटाइल आपको लेके आनी है हर पर्टिकुलर कैटेगरी में। यहाँ पर क्या है वो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर एटलीस्ट कैटेगरी वाइज सेक्शनल परसेंटाइल 30 टू बी एलिजिबल फॉर मेरिट लिस्ट। तो डिफरेंस देखिए बस, कैटेगरी वाइज आपको हर कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी में 30% के ऊपर, हर कैटेगरी जैसे जनरल में 30% के ऊपर अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो, आपको कॉल मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी सेक्शन में 30% से कम है तो आपको मिलेगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। नाउ सेकंड चीज एक इंपॉर्टेंट है कि SC कैटेगरी की हो तो 30% से ऊपर हर सेक्शन में लेके आने। उन जो स्टूडेंट्स हैं जिसने एक सेक्शन में 90% बैठा दिया, दूसरे में 80% बिठा दिया, तीसरे में 30% से कम आ रहा है तो वो भी उसको भी कॉल नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। तो ये प्री सेक्शनल कट ऑफ क्राइटेरिया है। इसमें फाइनली तो टोटल स्कोर ही लेगा जिपमेट का, लेकिन शुरुआत में एलिमिनेशन के फॉर्म में ये चीज रखी हुई है। रिजर्वेशन रूल्स, कैंडिडेट्स ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी विल अप्लाई टू SC, SC, NC, OBC, EWS एंड PWD कैंडिडेट्स। 70% ऑफ सीट्स आर जनरल न्यूट्रल, ये भी बिल्कुल वही चीज कर रहा है। 70% स्टूडेंट्स को सीट्स को जनरल न्यूट्रल कर दिया है। एंड 30%, if optimal number of girls are already in the general neutral seats, then the remaining 30% of seats will also be general neutral. Important. If not, the remaining 30% will be divided between general neutral and supernumerary girls seats to maintain a healthy gender ratio. ठीक है, ये ध्यान दिया जाएगा जेंडर डाइवर्सिटी को इंकरेज करने के लिए। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जिपमेट की। अगर मान लो दो स्टूडेंट्स का सेम जिपमेट स्कोर आता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इंटरव्यू राउंड भी नहीं है ना, 10-12 की परसेंटेज ले रहा है फाइनल सिलेक्शन के प्रोसेस में, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के टाइम पे ले रहा है कौन, IIM जम्मू भी और IIM बोध गया भी। तो ये टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया फॉलो करेंगे दोनों के दोनों कॉलेजेस। सबसे पहले जिपमेट के स्कोर को सबसे ज्यादा हायर रैंक देंगे, अगर नहीं है सेम है तो VARC सेक्शन जिसका ज्यादा है उसको, फिर उस अगर वो भी नहीं है तो फिर QA का सेक्शन जिसका ज्यादा है, फिर DILR का जिसका ज्यादा है, फिर मान लो ये सब सेम है तो फिर 10th का स्कोर जिसका ज्यादा है, 10th का स्कोर जिसका ज्यादा है, फिर अगर वो भी सेम है तो 12th का स्कोर, फिर रीसेंट अपीयरेंस इन क्लास 12th, कौन यंगर है और अभी 12th में गया पहले, ठीक है, और कौन यंगर है वो क्लास 10th में अभी गया, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड यंगर कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ फाइनल देखा जाएगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये पूरा ऑर्डर फॉलो किया जाएगा अगर सेम स्कोर आ जाता है जिपमेट पे। इट्स अ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी बिकॉज खूब सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये टाई ब्रेकिंग रूल जरूर लगता है। ठीक है, so this is all from my side. You can check out courses on toprankers.com. Follow us on Telegram as well because a lot of free content we are providing over there. I'm Rahul Vaswani now signing off from this particular video. कौन सी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में डाल दो. We'll be coming up with those videos as well. I'll be coming up with something fruitful and crucial in days to come. Thank you. Thanks a lot.